جی ویلکم بیک. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رائزنگ پاکستان اور اس وقت ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر لیا ہے آپ کے فیوریٹ اور ہم سب کے فیوریٹ فہد ملک نے, اور آگے ہیں سر اپنا کویشچن لے کے. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ لوگ کے؟ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. فہد, ویلکم ٹو رائزنگ پاکستان ونس اگین. فہد جو پاکستان کے ماشاءاللہ لیڈنگ ڈیجیٹل میڈیا کانٹینٹ کے گرو ہیں, اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور سوشل میڈیا اور پتہ نہیں کیا کیا. ویری کائنڈ. میں تو ابھی بھی سیکھ رہا ہوں مجھ سے. جی جی, آپ لوگوں سے اور روز کے ایکسپیرینسز. اچھا جی, آج پروگرام کے آغاز میں فہد بھائی کا ایک سوال تھا. چلیں جی آپ خود ہی وہ ریپیٹ کریں سوال. اس سے پہلے میٹا نے فیس بک نے اپنا نام چینج کر کے میٹا کیا تھا, اور پھر ٹویٹر کو ایلان بھائی نے لاسٹ ایئر دسمبر میں خرید لیا. انہوں نے ابھی کپل آف ویکس اگو اس کا نام چینج کیا. تو آئی ہوپ کہ کسی نے صحیح جواب دیا ہوگا کہ انہوں نے. جی ہاں بالکل. پروگرام کے آغاز میں جو ہم نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ ٹویٹر کا نام بدل کے کیا رکھ دیا ہے ایلان مسک نے, اس کے آمنہ اور ان کی ٹیم مجھے بتا رہی ہے کہ ابھی تک تقریباً 500-600 سے زیادہ پچھلے 15-20 منٹ میں صحیح جواب آ چکے ہیں. صحیح جواب. ٹوٹل جواب تو پتہ نہیں, وہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جی دھڑا دھڑ میسیجز آ رہے ہیں, لیکن ہم نے جو پہلے 4-5 صحیح جواب آئے وہ شامل کیے ہیں. بہاولپور سے ثانیہ نے کہہ رہی ہیں جی پچھلے سال ایلان مسک نے ٹویٹر خرید لیا تھا جیسے آپ نے کہا, اور ان کا خیال ہے کہ ٹویٹر کا لوگو پرفیکٹ نہیں ہے, اس لیے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس کا نام تبدیل ہو گیا ہے اور اب نیا نام ہے ایکس. اچھا. اور بلال نے حافظ آباد سے کہا ہے ٹویٹر کا نیا نام ہے ایکس. ایمان نے کہا ہے جی ٹویٹر کا نیا نام ہے ایکس. فہد انکل سوری نہیں, انہوں نے یہ جواب یار سیریسلی یہ خود پڑھو, یہ پڑھو کیا لکھا ہے. آپ لکھا ہے نا انکل؟ فہد انکل انکل لکھا ہے نا, آپ کیمرے میں بتاؤ کہ واقعی میں نے کچھ لکھا ہے. ہاں بچی چھوٹی ہوگی نا, وہ کہہ رہی ہے فہد انکل مجھے کیا نام ملے گا. میں بھی چھوٹا ہوں. وہ کہہ رہی ہے فہد انکل مجھے کیا نام ملے گا. فضیلہ ناصر ساہیوال سے صحیح جواب. عائشہ احسن کوٹل عرب علی خان سے صحیح جواب. عبداللہ فیصل آباد سے صحیح جواب, یعنی کہ ایکس, اور بے شمار صحیح جواب آ رہے ہیں. اب بتائیں جی. سر ایلان نے جب ٹویٹر لیا تو اس وقت یہ تھی ایک مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ جس پہ آپ 140 کریکٹرز میں اپنی بات لوگوں تک پہنچاتے تھے, اور پوری دنیا کے پولیٹیشینز انفلوئنشل لوگ اس کو استعمال کرتے تھے. انہوں نے کہا جی کہ میں, اور ٹویٹر ریونیو اس طرح سے نہیں جنریٹ کرتا تھا, ایڈز بھی کم ہوتے تھے, اور اس کا کوئی ایسا ریونیو ماڈل نہیں تھا. ایلان بھائی نے خریدا اور انہوں نے کہا جی کہ میں اب اس کو کروں گا تباہ. انہوں نے ساری چیزیں ریویمپ کی, اور سب سے پہلی چیز انہوں نے انٹروڈیوس کی جو ہم نے یہاں پہ بھی بیٹھ کے بات کی, کہ انہوں نے کہا کہ بلو ٹک آپ خریدیں گے $10 دے کے, آپ نیلا ٹک لیں گے. اور خبر آپ نے بریک کی تھی ہمارے شو میں. جی, اور اس کے بعد انہوں نے جو پہلے سے ویریفائڈ اکاؤنٹس تھے ان کے بلو ٹکس ہٹا دیے اپریل میں, اور ایوری بڈی ہیز ٹو بائی اے بلو ٹک ناؤ. اس سے ٹویٹر نے سسٹین کیا اپنا ریونیو ماڈل. اس کے بعد $8 کے کچھ $10 پاکستانی تقریباً $2300 پر منتھ. ویسے پر منتھ نہیں, ہر مہینے $2300. ہاں, اور ایلان بھائی لے رہے تھے, اور اس پہ آپ کو ملتے ہیں کچھ ایکسٹرا پرکس جس میں آپ لمبی ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں, نیلا ٹک آ جاتا ہے, بلا بلا بلا. اب آپ اگر کانٹینٹ کریٹر ہیں, اور ہمارے پروڈیوسر صاحب اگر وہ امیج سلائڈ دکھا سکیں جو کانٹینٹ کریٹرز کے لیے ایلان بھائی نے ٹویٹ کی تھی, اس میں ہے یہ کہ اچھا یہ نام کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ٹویٹر پہلے ایک مائکرو بلاگنگ پلیٹ فارم تھا جس میں 140 کریکٹرز کی لمٹ تھی, لیکن اب وہ ٹویٹر کو ری ویمپ کرنا چاہ رہے ہیں جس میں یہ ایک ایسی ویب سائٹ بنے گی جو میری اسیسمنٹ کے مطابق وہ اس کو ڈیلی یوزیج کی, ٹھیک ہے یہ والا اسکرین شاٹ از فائن. سو وہ ایک ایسی ویب سائٹ بنا رہے ہیں جو لوگوں کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کرے گی. اب اس میں ہے یہ کہ کریٹرز کے لیے یوٹیوب پہ اگر آپ مانیٹائزڈ آپ کا چینل ہے, آپ ویڈیوز ڈالتے ہیں, تو یوٹیوب آپ جو ریونیو جنریٹ کرتا ہے اس کا 40% اپنے پاس رکھتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب آپ نے اگر $1000 کمایا تو $400 سیدھا سیدھا یوٹیوب رکھے گا, 60% آپ کو ملے گا. $600 آپ کو. ہاں جی. فیس بک رکھتا ہے 20%. ایلان بھائی نے کہا کہ میں 100% کریٹر کو دوں گا جو ریونیو وہ جنریٹ کرے گا اپنے ٹویٹر سے. اور اس میں صرف لمٹ نہیں رکھی کہ اگر آپ کا منتھلی ریونیو $100 سے اوپر جائے گا تو پھر ٹویٹر اس کا 10% رکھے گا. ادروائز اٹس آلویز 100% گوئنگ ٹو دا کریٹر. یعنی اگر $1,00,000 100K اتنی 100 جی $1,00,000 $1,00,000 سے زیادہ ہوگا تو پھر 10% ٹویٹر رکھے گا, ادروائز وہ سارا آپ کا. اور $1,00,000 سوشل میڈیا سے کمانا ایک بہت بڑی وہ
obviously Impossible सी तो चीज़ है। 100% क्रिएटर को ही मिलेगा। अब उसमें मतलब $1 लाख का मतलब है तकरीबन 2.5-3 करोड़ रुपए महीने का महीने का 2.5-3 करोड़ रुपए। महीने का वो शायद कुछ इंटरनेशनल चैनल्स हैं जो कमा रहे हैं, लेकिन ट्विटर से इतना पॉसिबल नहीं है। अब उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर हमारे जी प्रोड्यूसर अगली साहब वो स्लाइड भी दिखा दिखाइएगा सकें। कंट्रोल रूम। इसमें उन्होंने बता दिया जी। कि हम 10% रखेंगे। बिल्कुल, अगर इससे आपकी अगली स्लाइड पे इससे अगली जाइए। वाली पे ये है जी वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि अगर आपने पिछले 3 महीने में आपकी ट्वीट्स को 15 मिलियन लोगों ने देखा हो अच्छा और आपके मिनिमम 500 फॉलोअर्स हो ठीक है और आपने ट्विटर ब्लू को सब्सक्राइब किया हुआ हो। ओके। अब इसमें एक थोड़ा सा साइंस ये है कि जब तक आप ट्विटर को पैसे नहीं दे रहे ना तो आप पैसे कमा भी नहीं सकते। सो हाँ आप लेकिन अगर 2300 रुपया महीने का मैं दे भी रहा हूँ और और उससे आप कमा रहा हूँ 5000 कमा रहे हैं तो it's सही a है, fair बिल्कुल deal। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अब इसके 2 मॉडल्स हैं। एक तो ये कि आप अगर आप तौसीक हैदर हैं और आप फातिमा हैं और आप अपने क्रिएटर्स को जो बच्चों को आप मेंटोर कर रहे हैं, आप उनके लिए एक सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च कर देते हैं कि मेरे से महीने का मैं $1 लूँगा और आप लोगों के लिए मैं एक्सक्लूसिव कंटेंट जनरेट करूँगा। वो कंटेंट आपके बाकी फॉलोअर्स को नज़र नहीं आएगा, वो सिर्फ उस बंदे को नज़र आएगा जो नज़र आपका आएगा। जो $1 दे रहा है। ओके एक यानी मॉडल $1 एडवाइस सिर्फ उसको मिलेगी जो $1 जो देगा। $1 देगा। आप ज़्यादा भी रख सकते हैं लेकिन मिनिमम $1 ही है पूरी दुनिया में। सो एक उसका मॉडल ये है ओके। जो आपको डायरेक्ट पैसे आ रहे हैं और ये पाकिस्तान में अभी फंक्शनल भी हो चुका है। कंप्लीटली नहीं हुआ लेकिन 50% फंक्शनल है। जर्नलिस्ट्स को सब्सक्रिप्शन ऑफर हो रही है। दूसरा मॉडल ये है कि आपकी ट्वीट के नीचे ट्विटर एड्स दिखाता है। आपने अच्छा। कोई भी रैंडम ट्वीट की हुई है जो पब्लिक है, जो सारे लोग देख रहे हैं, उसके नीचे ट्विटर ऐड दिखाता है और उस ऐड पे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो share करते वो 100% आपको मिल रहा है। 100%। वो भी 100% आपको Okay। मिल रहा है। सो आपने एक ट्वीट की, आपके तकरीबन पिछले 3 महीने में 15 मिलियन इंप्रेशंस आराम से क्रॉस हो जाते हैं जिस बंदे के 20-25 हज़ार फॉलोअर्स हों। आपके कितने फॉलोअर्स हैं सर मेरे 1,30,000 ट्विटर पे? जी, लेकिन मैंने अभी तक ट्विटर ब्लू सब्सक्राइब नहीं किया। 1 लाख फहद तुम्हारे 1,30,000 फॉलोअर्स हैं ट्विटर। सर लेकिन मैं 13 साल से ट्विटर पे हूँ ना। यार मैं तो बड़ा हल्का लेता, आज तक हल्का लेता आया हूँ फहद को सीरियसली। बस मैं खड़े होके बाकी का शो करना चाह रहा हूँ प्लीज। मैं खड़े होके नहीं सर, मेरे लिए ऑनर है कि मैं बचपन में आपको देखता था और अभी आके मैं आपको बातें सिखा रहा होता हूँ। वो अच्छा नहीं, लेकिन फहद ये ऐसा नहीं होता कि कितने फॉलोअर्स होंगे तो ऑटोमेटिकली ब्लू टिक मिल जाएगा या वो हर हाल में खरीदना ही वो खरीदना? अगर आपके 1 मिलियन से ऊपर होंगे तो फिर फ्री है। अच्छा अदरवाइज okay, आपको हाँ, ब्लू टिक otherwise आपको। खरीदना ही पड़ेगा। अच्छा। वो ब्लू टिक आप बाय। अच्छा उसके बाद लेकिन जब फाद इसके अंदर अब एक टेक्निकल सी बात है। सर। मेरा ख्याल है जिस लेवल के पैसों की हम बात कर रहे हैं उसमें $10 मैटर ही नहीं करता। सर मतलब ऑलमोस्ट जो हाफ ट्विटर की पॉपुलेशन है दे हैव बॉट ब्लू, चाहे वो रेवेन्यू जनरेट करें तो ना करें। आपने अभी तक नहीं खरीदा? सर मैंने नहीं खरीदा। कंजूसी की इंतहा है वैसे। मैं गरीब आदमी हूँ सर, मैंने कहा कि मतलब $10 तो 1,30,000 जो फॉलोअर्स हैं सर। वो जो नीचे एड्स आएंगे उससे जो लाखों कमाओगे। उससे और उन एड्स पे ना क्योंकि जिन लोगों को वो जिन्होंने वो अपना मोनेटाइजेशन मॉडल एक्टिवेट किया हुआ है वो भी क्रिएटर मॉडल फंक्शनल है। एड्स जो आपकी ट्वीट्स पे नज़र आ रहे हैं वो भी पाकिस्तान में रोल आउट होना है, लेकिन जो पाकिस्तानी बाहर हैं, जो बहुत सारे मेरे दोस्त और जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, उनको तकरीबन हफ्ते का ना $150-200 आना शुरू हो गया। आना शुरू हो गया। सो वाओ। पहले ये जब थ्रेड्स लॉन्च हुआ, मेटा ने एक निकाली ऐप जो ट्विटर जैसी थी, बिल्कुल। उस वक्त ये मेरी भी असेसमेंट थी कि शायद ट्विटर को ख़त्म होना पड़ रहा है या ट्विटर झटका खत्म हो लगेगा। जाएगा। लेकिन अभी मैं आपके शो पे बैठ के सारे देखने वालों को कह रहा हूँ कि आप लोग ट्विटर पे वापस आएँ, अच्छा। अपने प्रोफाइल्स बनाएं और एक्टिव रहें, क्योंकि तकरीबन 6-7 महीने बाद जब हम बैठ के दोबारा बात कर रहे होंगे तो ट्विटर शायद रेवेन्यू में सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा जो क्रिएटर्स का ख्याल रख रहा होगा। सो एवरीबडी शुड कम। वाह भाई, और यही वजह थी कि आज हमने ये सेशन रखा आपके लिए फाद भाई का कि ट्विटर एक दफा नोज डाइव करके एक्स हाँ सॉरी, अब तो ट्विटर नहीं कहना चाहिए, लेकिन पता है नहीं ट्विटर ही मुंह पे चढ़ा हुआ है। अच्छा जी, ट्विटर यानी कि एक्स नोज डाइव करके दोबारा से टेक ऑफ किया है और आम पाकिस्तानी भी इससे बहुत से पैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल। और ऑर्गेनाइजेशंस, इदारे वीडियो का कंटेंट, 1 घंटे की वीडियो डाल सकती है, 10 मिनट की नॉर्मल और वैसे 1 घंटे की जो पैसे दे के लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको डाल सकती है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड नॉट जस्ट फॉर वीडियो क्रिएटर्स, जो टेक्स्ट पे भी अगर लोगों को मेंटोर करना चाहते हैं, कोई चीज़ें बताना चाहते हैं, तो दिस इज़ फॉर एवरीबडी।
सो ट्विटर पे एक्स पे वापस आ जाए और इट्स लाइक नाउ YouTube काइंड Yes, ऑफ kind of YouTube, एंड है ना? टिकटॉक ट्विटर ने वो पाम वीडियोस वाला भी अच्छा feature फेसबुक शुरू कर जैसा दिया। नहीं है, ये बिल्कुल नहीं, डिफरेंट एक वो बिल्कुल डिफरेंट है। वर्ड्स की लिमिट बढ़ गई है ज़्यादा। पहले आप 140 कैरेक्टर्स से अभी आप 4000 कैरेक्टर्स की पोस्ट डाल सकते हैं। टिकटॉक इंस्टाग्राम की तरह वो वीडियोस वाला कॉन्सेप्ट आ गया है, स्वाइप अप करके आप वीडियोस भी उस तरह से देख सकते हैं। सो इवेंचुअली इट इज़ बिकमिंग अ मिक्स ऑफ ऑल प्लेटफॉर्म्स, बट अगेन द प्लस पॉइंट इज द रेवेन्यू दे आर गोइंग टू पे यू एंड इट्स आप गोइंग हैं टू बी जी गुड मनी। ट्विटर पे? गैस ये करें है। मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, गैस करें जी मेरे कितने फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे। इनके 520 समथिंग लास्ट आई सा। कोई 200 साल पहले मैंने ट्विटर के अकाउंट बनाए थे, मेरा ख्याल है कोई भी नहीं, मैं तो एक्टिव आपके लोग आपको फॉलो करें, आप अनाउंस करें अपना ट्विटर हैंडल। नहीं भाई, एक जिंदगी में सुकून से सुबह उठ के आते हैं, शो करते हैं, वापस जाते हैं। एक इंस्टाग्राम ने मत मारी हुई है, एक फेसबुक ने मत मारी हुई है, और टिकटॉक का भी मुझे शौक चढ़ गया था, वो भी अब मैं देखना शुरू हो गया हूँ। अब मैं अपनी जिंदगी में एक और स्यापा नहीं पालना चाहता जिसका नाम है ट्विटर आप कहीं सादा सा मैं हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी में, अपनी बिल्लियाँ, अपने कुत्ते, अपने दरख्त, अपने पौधे, मेरा किचन, मेरा फ्रिज, मेरी सब्जियां। आई एम वेरी हैप्पी। फहद मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं बिल्कुल कन्विंस नहीं हुआ आपसे। बस अब फिर ये तो आपको पैसों की जरूरत नहीं है ना। अच्छा नहीं, क्या मतलब सिर्फ पैसों के लिए या आइडेंटिटी का भी एक सर issue है? आइडेंटिटी के लिए तो है ही है ना। आइडेंटिटी तो इन एनी केस आपको आपकी रीच मैसिव है, पूरी दुनिया तक आपका एक्सेस है। देखो ना फहद, माशाल्लाह मजाक अपनी जगह, लेकिन आप पाकिस्तान के लीडिंग डिजिटल कंटेंट मैनेजर्स में से हैं। क्रिएटर नहीं, मैनेजर्स, ये भी एक खास स्पेशलिटी है। अब आपको ट्विटर से 1 रुपया भी नहीं मिलता, लेकिन आपकी एक आइडेंटिटी है कि 1,30,000, नहीं सीरियसली 1,30,000 फॉलोअर्स। सो इट्स नॉट, कभी सिर्फ पैसा ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो जो आपको किक मिल रहा होता है, बिल्कुल। वो एक्नॉलेजमेंट मिल रही होती है, सताइश मिल रही होती है, वो भी जरूरी वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो कई दफ़ा पैसे से ज़्यादा। और उसके पर्क्स ये होते हैं कि आप एक इंटरनेशनल मार्केट में फिर प्लेस हो जाते हैं। आपको लोग बाहर से भी क्यूरीज आती हैं, और बहुत सारी Exactly. चीज़ें शायद मैंने ट्विटर के थ्रू, मतलब ट्विटर से डायरेक्टली पैसे नहीं लिए, लेकिन बहुत सारे क्लाइंट्स शायद मुझे वाया ट्विटर मिले, जो डीएम कर देते हैं। तो बेसिकली एक एडवर्टाइजमेंट आपकी उधर भी हो रही होती है, और वो फ्री की ब्रांड वैल्यू तो आपकी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो बड़ी ज़रूरी है। फहद, थैंक यू वेरी मच, बहुत मज़े का आपका सेगमेंट था, हमेशा की तरह बड़ा इंटरेस्टिंग हमें पॉइंट्स मिले। आप ट्विटर पे हैं? मैं नहीं हूँ, लेकिन अब मैं फॉरेन अकाउंट बनाऊँ। पैसे कमाओ फातिमा, पैसे भाई कमाओ। मुझे तो चाहिए पैसा। ट्विटर नहीं ले रहा 10%, लेकिन वो मैं ले लूँ। ऑल द बेस्ट फहद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हम राइजिंग पाकिस्तान में साथ ही चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो क्या है जी? जी सोशल मीडिया, सोशल मीडिया मैसेजेस और हैं। एक मिली नगमा प्यारा सा वो भी। एग्जैक्टली, रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।